Students, as you know, we started with the chapter matrices in the previous class, and today we move into the chapter with the new topics as I discussed in the last class that today we are doing what? The number of elements of a matrix, their order. So first of all, we start with the number of elements of a matrix and the relationship between the orders and the number of elements. So we start with the matrix. See, here we have a matrix of order 3 by 3. If we have a matrix of order 3 by 3, that means how many elements are there in this matrix? Like here you can see that this matrix has the order in the form n into m. Here you can see that n is 3 and m is what? 3. So the number of elements will be equal to, the total number of elements is always equal to the product of the rows into columns. So number of elements is the number of rows multiplied by the number of columns. So in this case you have the order 3 by 3. So there are how many elements? 3 multiplied by 3, there are 9 elements in this matrix. And suppose I take one more example. If I take a matrix of order say 2 by 5, means 2 rows and 5 columns are in this matrix. So the number of elements in this matrix is what? 2 multiplied by 5. So there are what? The 10 elements are present in this matrix. अब जैसे कि मैंने बताया कि order 2 into 5 है, means जो number of elements है they are related with the product of rows into columns, and ये हमारा क्या होगा? This is equal to the number of elements. That means number of elements के हम जितने factors बना सकते हैं, जितने भी हम factors बना सकते हैं उतने ही हमारे एक possible orders उस matrix के हो सकते हैं. Say in this matrix you have how many elements? 12 elements. I have taken the matrix of order 3 by 4. Matrix of order 3 by 4. So there are 12 elements. Now forget about this order. Consider the total number of elements. Means now we are known with the number of elements only. Suppose a matrix has total number of elements equals to 12. Now the possible order of this matrix which contains 12 elements, मतलब जिस matrix में 12 elements होंगे उसके possible orders हमारे क्या हो सकते हैं? मैंने अभी क्या बताया था कि जो order है अगर हम rows into column करते हैं तो हमें number of elements मिल जाते हैं. That means if we make the factors of 12, अगर हम 12 को 2 factors मतलब rows into columns में जितने तरीके से break कर सकते हैं, that means हमारे उतने ही possible order हो सकते हैं. Like 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 into 12, मतलब order 1 into 12 भी हो सकता है. 1 row 12 columns. It may be 2 into 6 because total number of elements remains the same. It may be 3 into 4, 4 into 3, 6 into 2 and 12 into 1. So there are 6 possible orders of a matrix that contains 12 elements. मतलब जिस matrix में हमारे 12 elements है उसके possible order हमारे क्या हो सकते हैं? 1 by 12, 2 by 6, 3 by 4, 4 by 3, 6 by 2 and 12 by 1. If I am taking 3 by 4 means 3 rows and 4 columns, and here 4 by 3 means 4 rows and 3 columns. These two matrices are different to each other. दोनों different हैं, जैसा कि हमने last class में discuss करा था. Equal matrices. Equal matrices में क्या था? Their order should be the same, the first condition, and their element should be the same, second condition. इसका मतलब अगर order ही different होगा तो they are different. तो इस तरीके से हम अपने अगर
हमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पता है, वी कैन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड इफ वी नो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी कैन मेक द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. Now one example, suppose a matrix is of order 3 by 3, that means it has total 9 elements. Number of elements will be 9. 3 multiplied by 3, number of elements 9 है. मैं थोड़ा सा और डीप में इसको लेकर जाता हूं. अब हमें क्या पता है कि जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है इट इज 3 by 3 and it has 9 elements, 3 rows and 3 columns. अब मैं क्वेश्चन ये ऐड करता हूं इसके अंदर कि जो हमारी ये मैट्रिक्स है, इफ ईच एलिमेंट मे बी ईदर 0 और 1, ईच एलिमेंट may be either 0 और 1. मतलब ये कि जो इसके एलिमेंट्स है वो या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं. अगर यहां पर 0 है तो यहां पर 1 हो सकता है, और यहां पर अगर 1 है तो यहां पर 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, राइट. तो कितने पॉसिबल मैट्रिसेस यहां पर हम फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कितनी मैट्रिसेस हम बना सकते हैं. हर एंट्री या तो हर एलिमेंट या तो 0 होगा या 1 होगा. तो सबसे पहली चीज यहां पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने 11th में चैप्टर किया है. हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं, एंड ईच एलिमेंट हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 2. ईच एलिमेंट कैन बी यूज्ड एज either 0 or 1, means in 2 ways. हम हर एक एलिमेंट को 2 ways ले सकते हैं, एंड हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स है. इसका मतलब therefore total possible ways will be, हर एक एलिमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो 2 है. ये 2 वेज हो सकता है, 2 वेज हो सकता है, 2 वेज. सो एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर हमें याद है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्क अगर m वेज होता है एंड अनदर वर्क कैन बी हैपन इन n वेज, सो टोटल नंबर ऑफ वेज द वर्क कैन हैपन इज m इंटू n. मतलब टोटल n इंटू m और m इंटू n वट एवर यू टेक साइमल्टेनियसली हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहां पर हर एक एलिमेंट 2 वेज हो सकता है, एंड देयर आर टोटल 9 एलिमेंट्स. इसका मतलब 2 जो है वो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 2 raised to power 9. 512 matrices are possible with order 3 by 3 and element either 0 or 1. अब हम अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं. अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे. अभी जो हमने किया वो रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द ऑर्डर. अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. सी द फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स first is a row matrix. Now, what is a row matrix? A matrix having one row and any number of column, that means the order of the matrix is 1 into n, one row any number of columns, then the matrix is said to be a row matrix. जैसा कि देख रहे हो मैंने यहां पर लिया 1 by 1, 1 row 1 column, it is a row matrix. 1 by 2, if I take order 1 by 2, it is a row matrix. 1 by 2 मतलब 1 row 2 column. देख रहे हो यहां पर क्या है, 1 row 2 columns like this. This is a row matrix. If I take 1 minus 1 4 5, this is of order 1 by 4. So only one row any number of column, this is a row matrix. Next is the column matrix.
See, what is the column matrix? In column matrix we have only one column, any number of rows. रोज जितनी मर्जी हो, कॉलम सिर्फ वन होना चाहिए. जैसे कि यहां पर देख रहे हो तुम, जो मैंने मैट्रिसेस लिखी हैं वो क्या है? 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1. मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो फिक्स है 1. रोज मैं चेंज कर रहा हूं. सो एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n into 1 means any number of rows but one column is called a column matrix. जैसे यहां पर हम देख रहे हैं 2, 3, 1. Here we have 3 rows but 1 column, so this is a column matrix. Next is the square matrix. Square matrix, यहां पर तुम देख रहे हो इन मैट्रिसेस में क्या चीज स्पेसिफिकली दिख रहा है तुम्हें? जो भी तुम मैट्रिक्स देख रहे हो, इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर. स्क्वायर कैसे दिख रहा है? बिकॉज इट हैज द सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम कॉलम्स. मतलब अगर हमारा लेंथ भी और ब्रेड्थ अगर दोनों इक्वल है, दैट मीन्स स्क्वायर फॉर्म करेगा. एंड हेयर वी हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो एनी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n into n is called a square matrix. The possible orders of square matrices are, see, 1 by 1, 1 row 1 column, 2 by 2, 2 rows 2 column, 3 rows 3 columns. So this is what a square matrix. Square matrix में हमेशा क्या होगा? अगर हमारा order, suppose we take a matrix of order n into m. This is the order of the matrix. If n equals to m, then it is a square matrix. क्या बन जाएगी ये? स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी. एंड स्क्वायर मैट्रिक्स में बस ये ध्यान रखना कि ऑर्डर हमारा क्या है? रोज एंड कॉलम्स जो है वो हमेशा सेम होने चाहिए. नेक्स्ट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स हमारी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमारी यूनिट मैट्रिक्स होगी, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. सो वी डिफाइन इट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which a square matrix in which aij equals to 1 if I equals to j. मतलब अगर रो एंड कॉलम सेम है, मतलब ith रो jth कॉलम में अगर i एंड j सेम है, वो एलिमेंट हमारा क्या होगा? 1 होगा. एंड द एलिमेंट aij इज 0 if i is not equal to j. मतलब i अगर j के इक्वल है तो एलिमेंट 1 होना चाहिए, एंड i एंड j अगर अनइक्वल है तो एलिमेंट 0 होना चाहिए. एंड इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो हमारा ऑर्डर है वो क्या रहता है? 1 by 1 रहता है, 2 by 2 रहता है, 3 by 3, 4 by 4. मीन्स नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. तो ये मैंने क्या अज्यूम करी है? स्क्वायर मैट्रिसेस. नाउ सी, व्हेन aij, व्हेन i इक्वल टू j, aij इज 1. यहां पर ये जो एलिमेंट है ये किसका? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब i इक्वल टू j, सो एलिमेंट शुड बी 1. इन दिस केस दिस इज द एलिमेंट ऑफ a11. i और j इक्वल है, मतलब क्या होगा? 1 होगा. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम अनइक्वल, 0 0 1. सेम इसी तरीके से इसमें लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1. लास्ट क्लास में मैंने बताया था डायगोनल, राइट? मैंने एक डायगोनल बताया था.
अगर डायगोनल एलिमेंट हमारे 1 हैं एंड बाकी एलिमेंट्स अगर हमारे 0 हैं तो वो हमारी क्या होगी, यूनिट मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। व्हाट इज द जीरो और नल मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स में इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बट द थिंग इज अगर उसके सारे एलिमेंट जीरो हैं देन इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, a matrix of any order is said to be a null matrix if aij equals to 0। ए आई जे इक्वल्स टू 0 मतलब अगर सारे एलिमेंट उसके 0 हैं तो वो हमारी नल मैट्रिक्स हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स। लाइक इट मे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट मे बी लाइक अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सिंस ऑल एलिमेंट्स आर 0 सो दीज टू आर द जीरो मैट्रिसेस। नेक्स्ट इज द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स भी हमारी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट ए आई जे, द एलिमेंट ए आई जे इज सम स्केलर व्हेन आई इक्वल्स टू जे। मतलब अगर आई जे के इक्वल है, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या है वो हमारा कोई स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज एलिमेंट इज 0। दैट मीन्स इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे एलिमेंट इज 0। लाइक इन दिस केस सी द एग्जांपल क्या है, 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। इसका मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमारा क्या है, सारा 5 है। अगर डायगोनल एलिमेंट हमारा सेम है और बाकी सारे एलिमेंट 0 है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। सी इन दिस एग्जाम्पल, ये जो मैंने मैट्रिसेस यहां पर तुम्हारे स्क्रीन पर आ रही है, इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट द स्केलर मैट्रिक्स, बट डिफरेंस क्या है, स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। जिस तरीके से अभी हमने पीछे जो स्केलर मैट्रिक्स किया वहां पर हमने किया था व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे एलिमेंट इज 0, यहां पर भी व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे एलिमेंट 0 है। बट द डिफरेंस इज जो डायगोनल एलिमेंट यहां पर दिख रहे हैं तुम्हें, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है हमारे, दे आर नॉट कांस्टेंट, मतलब कुछ भी वो हो सकता है, जरूरी नहीं है वो कांस्टेंट है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कांस्टेंट हैं मतलब सेम है, बाकी एलिमेंट्स अगर हमारे 0 हैं तो वो हमारा किस में आ जाता है, स्केलर मैट्रिक्स में। बट बाकी सारे एलिमेंट अदर देन द डायगोनल मीन्स अदर देन डायगोनल बाकी एलिमेंट 0 हैं एंड जो डायगोनल एलिमेंट्स है दे आर नॉन 0। इसका मतलब if I is not equal to j then aij equals to 0, and if I equals to j then element aij may be 0 or non-zero, then it may be 0 और नॉन 0, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अगर कोई भी जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। जो स्केलर मैट्रिक्स है उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं।
कह सकते हैं, बिकॉज जो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशंस है उसको ये फुलफिल कर रहा है। बट डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते, डायगोनल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स नहीं कह सकते, डायगोनल मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स नहीं कह सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो जो ऑपरेशंस हैं हमारे 4 ऑपरेशन जो होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है इज द एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। Addition. Suppose we have a matrix A of order n by m whose elements are given by aij। एलिमेंट जो है वो aij से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब a11 a12 like this, and B is another matrix of the same order, that means हम जब भी मैट्रिसेस का एडिशन करेंगे their order should be the same, suppose we have another matrix whose elements are given by Bij, then A plus B will have the same order n by m। जो हमारा सम ऑफ द मैट्रिसेस आएगा उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा, एंड द एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij प्लस bij, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। यानी जब भी हम 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू चेक, देयर ऑर्डर शुड बी द सेम। इफ देयर ऑर्डर आर सेम मीन्स वी कैन ऐड द मैट्रिसेस। और ऐड कैसे करना है, जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3, 2 rows and 3 columns, say 3 2 1 -1 6 2, this is of order 2 by 3. I take another matrix of the same order 4 1 3 -5 2 6, then A plus B will be, what will do, we add the corresponding elements, aij plus bij का मतलब है corresponding elements ऐड हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा 3 plus 4 7, 2 plus 1 3, 1 plus 3 4, -1 plus -5 is -6, 6 plus 2 8, 2 plus 6 8. So this is the sum of 2 matrices. इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं, इन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 matrices, सेम वे जैसे एडिशन में देयर ऑर्डर शुड बी द सेम, इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है उसमें भी ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। यानी कि ये सेम हम केस लेकर चलते हैं। इफ वी फाइंड a माइनस बी, तो क्या होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे aij माइनस bij। जिस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक हेयर इन दिस केस a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें, a माइनस बी मतलब इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करनी है। 3 minus 4 -1, 2 minus 1 1, 1 minus 3 -2, -1 -5 will be +4, 6 minus 2 4, 2 minus 6 -4, again the matrix of the same order। ये है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 matrices। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 matrices।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या है, मैट्रिक्स ही आती है। इफ वी सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस, उसका भी आंसर हमारा क्या आता है, मैट्रिक्स ही आता है। इसका मतलब द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंडली क्लोजर का तो हमें यहाँ पर कोई यूज नहीं है, बट यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट इज कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। पहले हम जो प्रॉपर्टीज कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, एडिशन की। इन एडिशन matrices are commutative to have their sum, means a plus b is equal to b plus a। अगर हम a plus b करें और b plus a करें, मतलब बात तो वही है। अगर मैं a plus b करूंगा दिस विल बी a i j plus b i j, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। एंड अगर मैं b plus a करूंगा तो b i j plus a i j हो जाएगा, एंड दे आर सेम, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। इसका मतलब एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव। सेम वे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, लाइक a plus b plus c equals to a plus b प्लस सी। जिस तरीके से अगर हम b प्लस सी पहले फाइंड आउट करें फिर a ऐड करें मैट्रिक्स, या हम पहले a एंड b मैट्रिक्स को ऐड करके फिर मैट्रिक्स c ऐड करें, इट डजेंट मैटर, आंसर विल बी द सेम। तो जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है वो कॉम्यूटेटिव भी है एंड एसोसिएटिव भी है। बट सब्ट्रैक्शन में अभी तक जो तुम छोटी क्लासेस में भी और इससे पहले जो तुम पढ़ते आए हो, क्या सब्ट्रैक्शन हमारा कॉम्यूटेटिव होता है? नहीं। 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2, यानी जो ए आई जे माइनस बी आई जे अगर हम करते हैं नॉट इक्वल टू बी आई जे माइनस ए आई जे, दैट मीन्स ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, एंड इफ इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी नहीं होगी। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा, द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन जो है इसके अंदर दो हैं। एक है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड सेकेंड इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम आज की क्लास में कर रहे हैं, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। सो वी स्टार्ट विद द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by m whose elements are given by aij. If we calculate scalar multiplication, means we are multiplying the matrix by a scalar. If I multiply this matrix by some scalar k, then what will be my result?
each and every element of the matrix gets multiplied by that scalar, means this will be k into aij, k into aij हो जाएगा, मतलब स्केलर जो है वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, if I take a matrix A, suppose I take a matrix of order 3 by 3. एवरी टाइम आई एम टेकिंग, यूजुअली मैं क्या ले रहा हूँ, 3 by 3 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, बिकॉज 3 by 3 की जो मैट्रिक्स है उस पर तुम्हें ज़्यादा ऑपरेट करना आना चाहिए. तुम्हारा जो ये सिलेबस है उसमें ज़्यादातर 3 by 3 पर ही तुम जो भी प्रोसेस ऑपरेशन करोगे और वट एवर यू डू इन द चैप्टर, 3 by 3 ही मोस्टली तुम्हारे सामने मैट्रिसेस होंगे. सपोज आई टेक मैट्रिक्स 2 1 2 3 3 1 1 4 4. दिस इज अ matrix of order 3 by 3, and I have to calculate 5a. 5a, that means 5 multiplied by the matrix A. So what will be my result? क्या बताया मैंने, जो कांस्टेंट है स्केलर है वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसका मतलब जो 5 है वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 2 ज़ 10, 5 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10, 5 3 ज़ 15, 15 5 5 5 4 ज़ 20 20. ये हमारा आ गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन.